Hello students, welcome back to Tuition Masters, and today we are here with doing English sample paper for your grade 10 as board exams are near. अभी आपके 27 फेब को ही एग्जाम्स है. So today हम लोग इंग्लिश का सैम्पल पेपर डिस्कस करने वाले हैं बाय CBSE अपलोड किया है. तो आज हम सैम्पल पेपर डिस्कस करने वाले हैं. If you want, I have a detailed videos on the chapters as well. तो चलो let's start with the English sample paper. Make sure to like this video, share with your friends and subscribe करो चैनल को right away. So let us start with doing the sample paper. क्या क्या है sample paper? I'll give you a go through. But first of all, हमारे बेसिकली तीन सेक्शंस है, ए बी और सी. ए में हमारा रीडिंग स्किल्स है, दो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है, ठीक है. बी में हमारे ग्रामर, सारे एमसीक्यूज लाइक नॉट एमसीक्यूज और थोड़े एरर करेक्शंस वो, और क्रिएटिव राइटिंग है. और सेक्शन सी में सारा का सारा आपका लिटरेचर है. सो दीज आर द थ्री सेक्शंस हमारे पास है, और हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे रीडिंग स्किल्स से. ठीक है, रीडिंग स्किल्स जो आपका है पूरे 20 मार्क्स का, पूरा 20 मार्क्स का है. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. अब देखो, आपके पैराग्राफ दिए गए हैं इसमें, ठीक है, पैराग्राफ्स है. व्हाट यू कैन डू, अगर आपको आपको नहीं, आई विल रीड द पैराग्राफ. इफ यू डू नॉट वांट टू हियर द पैराग्राफ, क्या करो, वीडियो को पॉज करो, पैराग्राफ खुद से पढ़ लो और स्किप कर दो, आगे स्किप कर दो, आगे चले जाओ, ठीक है, और दूसरा पढ़ लो. उसके बाद फिर हम क्वेश्चन साथ में करेंगे. ओके. So, mountains have always been held in great awe by mankind. They have been a challenge to humans. Those brave among us have always wanted to conquer them. You see, the more incredible the mountains, the greater the thrill, a challenge to the bravery of the human race. Climbing mountains is an experience that is hard to put into words. You are in a beautiful environment, and when you reach the top, you feel incredible. But you also have to climb down, which is when most accidents happen. People are tired, it gets dark, it's harder. So, mountain climbing is undoubtedly one of the most popular adventure sports. Without any perceived risk, there can't be a feeling that any significant challenge has been surmounted. Fair, but we have to bear in mind that mountaineering is not a sport that can be embraced without preparation. The enthusiast must develop a spirit in themselves, the spirit of adventure, willingness to undertake hardships and risk, extraordinary powers of perseverance, endurance, and keenness of purpose before climbing a mountain. They should also know how to handle the mountaineering equipment. Then comes the penance of the rigorous training. This could very well be the lifeline up there. It helps inculcate and hone survival instincts that allow the climber to negotiate perilous situations. There are numerous institutes in India and abroad that offer such training. ठीक है, सो ये पहले दो पैराग्राफ है. Now let's move to the next two. Mountain climbers are unanimous in agreeing that the unpredictable weather is what they fear the most. There may be sunshine one moment and a snowstorm the other. At higher altitudes, snow is regular feature, and being decisive about setting up camps or proceeding further is crucial. Icy sheets after ice storms make walking treacherous, while the powdery snow makes the mountaineer sink deep into the snow. Up there, where the intention is to embrace nature's wonder, one realizes that it cannot be done without facing its formidable glory. A true mountaineer may challenge the mountain, yet is always respectful to the power forces. Summiting mountains carries its own health risks such as oxygen and altitude sickness problems, frost bites, swelling of hands, fluid collection in brain or lungs, and exhaustion. Yet the gratification mountaineers feel from mastering something that is so frightening, urges them to undertake these endeavors. We may think that the mountaineers are fearless. Experts say not at all. It's fear that keeps them so intrigued with such arduous journeys. Impulse and braziness and can be deadly force. In words of the Indian mountaineer Bachendri Pal, the biggest risk is to not take the risk at all. Remember that. So ये हमको माउंटेन्स के बारे में बताया गया है कि क्या होता है, माउंटेन क्लाइंबर्स के बारे में. दिस इज द पैराग्राफ. इफ यू स्टिल डिड नॉट अंडरस्टैंड, यू कैन गो बैक एंड रीड अगेन. अब हम जाते हैं क्वेश्चंस के ऊपर. क्वेश्चन नंबर 1. Why does the writer say that the mountains inspire awe in humans? See, mountains have always been the great awe by mankind. So उन्होंने क्यों ऐसा बोला है?
correct? It is because they present us opportunities, evoke the wish to master them, inspire in us, और represent peace and calm to us. So क्या होता है, और to humans, क्योंकि वो evoke करते हैं कि इतना बड़ा challenge है, हमको तो करना है, we will do this challenge, so hence they evoke the wish in us to master them. Second one, select the option that corresponds to the following. The more incredible the mountains, the greater the thrill. मतलब the more incredible और greater the thrill. ये देखो आपको रिलेशन समझ रहे हैं ना, ज्यादा माउंटेन्स और इतने बड़े और उतना ही बड़ा उनका मतलब the thrill is there, right? So how can we say higher the stamina, lower नहीं, मतलब दोनों बड़े हैं, मोर भी बड़ा तो ग्रेटर भी बड़ा, सो या तो दोनों बड़े होने चाहिए या तो दोनों कम. द मोर यू लव द लेसर योर इलनेस नहीं, द स्मॉलर द कार द बिगर नहीं. अब द हैवियर द लगेज द हायर द पेनल्टी. हैवी ज्यादा क्वांटिटी है, हायर ज्यादा क्वांटिटी है, हेंस डी विल बी योर करेक्ट आंसर. ओके, next one. Select the option that displays what the writer projects with reference to the following. So mountain climbing is undoubtedly one of the most popular adventure. तो ये हमको बता रहे, तो क्या हम बोल रहे कि उनको डाउट है, कॉशन है, कन्विक्शन है, डिनायल में है वो. सो इट इज ऑब्वियसली अ कन्विक्शन. भाई कन्विक्शन से बोल रहे हैं कि हाँ, कि वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पॉपुलर स्पोर्ट है. ठीक है. नेक्स्ट इज कंप्लीटली फॉलोइंग विद द फ्रेज फ्रॉम पैराग्राफ. बेस्ट एक्सपीरियंस रादर देन डिस्क्राइब. पैराग्राफ 1 में हमको देखना है बेस्ट, क्या था वो, हाँ, इट इज बेस्ट एक्सपीरियंस रादर देन डिस्क्राइब. सो क्या वर्ड दिख रहा है आपको, यू कैन सी दैट हार्ड टू पुट इन टू वर्ड्स, मतलब हम उसको शब्दों में नहीं कह सकते. सो दैट्स व्हाई द आंसर विल बी हार्ड टू पुट इन टू वर्ड्स. हार्ड टू put in words is the correct phrase. Okay, next one. The writer compares training to penance in the line. Then comes the penance of the rigorous training. Paragraph 2 में हमको one point of similarity बताना है between training and penance. Training और penance में क्या major similarity और difference है, ठीक है. So main चीज क्या होती है, ट्रेनिंग और पेनेंस में दोनों ही हार्ड वर्किंग होते हैं, ठीक है, लाइक हार्ड वर्क करना पड़ता है और इट इज वेरी टफ, करेक्ट, बहुत ही डिफिकल्ट होता है. हार्ड वर्क दोनों में फॉलो करना पड़ता है, राइट. एंड देयर इज स्ट्रिक्ट रूल्स, ठीक है, रूल स्ट्रिक्ट होने चाहिए और प्रिजर्वेंस चाहिए रहता है. सो यू कैन राइट एनी वन ऑफ द सिमिलैरिटी. Next question. Based on the reading of the tale, list two reasons why writer says that mountaineering is not a sport that can be embraced without preparation. कि हम mountaineering को बिना preparation के नहीं embrace या नहीं उसको पा सकते हैं. Why? See the 2 points. Because mountaineering includes dealing with very health hazards and cannot be managed. आपको अगर उधर कुछ हो गया, if anything wrong happens, who is responsible, कौन सही करेगा जो गलती हुई है, so you have to be aware about that. And even because managing unpredictable weather is essential in mountaineering and cannot be accomplished without being prepared with the specific training. Climate को देखना, health hazards को ध्यान रखना. If you do not know this preparation, you cannot do it. Correct? So that will be the answer. Next question. What connect does the writer draw out between unpredictable weather and setting up of camps in paragraph 3? So paragraph 3 में वो बोलते हैं कि weather जो होता है हमेशा unpredictable है, हमको नहीं पता कभी क्या हो जाए. So it makes it difficult to decide कि हम कैंप लगाए कब. वेदर आप भी धूप है तो अगले 5, 10, 15, 20 मिनट में इट कैन स्नो. सो वी डू नॉट नो व्हेन टू सेट अप कैंप एज अ माउंटेनियर एंड प्रेफर टू क्लाइम व्हेन इट इज सनी एंड काम करके रेस्ट करेंगे व्हेन इट इज स्नोइंग. ठीक है. अब next question. Writer says a true mountaineer may challenge the mountain yet is always respectful. State the reason the mountaineer is respectful for the forces. क्यों ऐसा, ऑल्दो इतना चैलेंजिंग होता है, करेक्ट, सब होता है, पर फिर भी हम उसको रिस्पेक्ट क्यों करते हैं? बिकॉज ऑफ दिस सर्वाइवल. आप नेचर को चैलेंज करोगे, आपकी ही जान खतरे में जाएगी, isn't it? So that is why survival is the main thing. उसके बाद नेक्स्ट वन. While mountain climbing, an impulsive mountaineer is either disaster prone or as good as dead. तो हमको इसको justify करना है. क्यों? See, the answer will be based on survival only. Survival जो है हमारा जीना is the main
thing, main key to success in mountain climbing. It can be done with meticulously planning, careful decision making, proper training करके, right, and has no room for rash or impulsive decisions. और वो अगर हाश फटाफट से डिसीजन ले ले, नहीं 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 चलो कुछ नहीं, धूप ही रहेगी, हम चले जाते हैं, इट कैन लीड इन एक्सीडेंट्स और फर्दर फैटिलिटीज ऑल्सो. ओके. Last question. Evaluate the inappropriate reason for feeling of exhilaration on reaching a summit that the mountain climbers, उधर पहुंच के उनका ऐसा क्या फील होता है. So इनअप्रोप्रिएट रीजन ढूंढना है हमको. अचीवमेंट ऑफ सीमिंगली इम्प्लॉज, हाँ वो तो होता है कि हमने इतनी बड़ी जो कोई नहीं कर पाया हमने किया, लाइक दैट, यस. एक पैनोरामिक व्यू, हाँ वो भी होता है. और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट से एप्लीकेशन करना, वो भी होता है. पर अपॉर्चुनिटी सोफिस्टिकेटेड माउंटेनिंग इक्विपमेंट, वो थोड़ी ना पहुंच करने का, अच्छा हमने पहुंच तो गए पर हमने सोफिस्टिकेटेड यूज किया कि नहीं, वो थोड़ी ना होगा. सो ऑब्वियसली द आंसर इज ऑप्शन डी. ओके. नाउ अभी हम दूसरे पैराग्राफ पे चलते हैं. The northeast of India is a melting pot of variegated cultural mosaic of people and races, an ethnic tapestry of many hues and shades. Yet these states are lesser explored as compared to the rest of the country. The new generation of travelers who are money rich and time poor are increasingly looking for unique experiences, a phenomenon being called the emergence of the experience economy. For this new and growing breed of tourists, the Northeast, with its variety and uniqueness, holds great attraction. A study conducted in 2020 by Dr. Shera Bhutia revealed that the foreign tourist arrival in Northeast increased from 37,380 in 2005 to 118,552 in 2014, by both domestic and foreign. In Northeast, the as high as 26.44% during 2005 to 6, and high and positive growth of 12.53% was registered in foreign tourist of northeast states of India during 2012 from 11, which further rose to register a growth of 27.93 percentage during 2013 to 2012. Foreign tourist arrivals in the northeast witnessed a growth of 39.77% during 2014 to 13, according to the data from Ministry of Tourism. The study recommendations for tourism planners included the need to concentrate on some key areas like enhancement of tourist facilities, tourism financing, focus on community involvement, and others for the formulation of sustainable tourism. So, इसमें हमको बता रहे हैं मेजरली नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स का, ठीक है, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है हमारे इंडिया के, उसके बारे में हमको बता रहे हैं वो लोग कि कितना टूरिज्म बढ़ा घटा, लाइक दैट. ओके. तो हम क्वेश्चंस के ऊपर जाते हैं. And for one reason for the following, the rate of tourism in northeast of India puzzles tourism officials. और tourism officials को puzzle क्यों हो जाते हैं rate ढूंढने के लिए? So see, answer is over here. This is because northeastern states are less explored as compared to the rest of the country, in spite having lots to offer. भले नॉर्थ ईस्ट एशिया में बहुत हिस्ट्री है, बहुत ही एक्सप्लोरिंग चीजें हैं, बट उसको अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया गया. वो स्टेट जो है वो इतने इनहैबिटेड नहीं है. दैट्स व्हाई इट इज कंफ्यूजिंग फॉर द टूरिज्म ऑफिशियल्स. अब from paragraph 1 we can infer that the dash and dash of the northeastern state aid attracting the money rich and time poor tourist. ये देखो, oh sorry, you can see over here, ये देखो क्या अट्रैक्ट करती है. The new generation of travelers who are money rich and ever increasingly looking for unique experiences, that is the experience economy. करेक्ट. सो हमको क्या ढूंढना है इसमें, कौन सा हमारा सही होगा, डिस्टिंक्टिवनेस, कन्वेंशनैलिटी, डाइवर्सिटी, यूनिफॉर्मिटी या मॉडर्निटी. अब देखो, डिस्टिंक्टिवनेस तो है, एकदम अलग है उनसे, सबसे अलग है वो, इजंट इट, अलग है, और उसमें कई सारी डाइवर्सिटी भी है. कन्वेंशन, यूनिफॉर्म, मॉडर्निटी उसमें कुछ नहीं बताया गया, राइट. सो 1 and 3 वुड बी योर अप्रोप्रिएट आंसर. Next question. Complete the following analogy. Aroma refers to cooking. Similarly, dash refers to painting. मतलब अरोमा कहाँ से आते हैं, कुकिंग से आते हैं ना, सो पेंटिंग से क्या आएगा. सो लुक ओवर पैराग्राफ 1 से क्या दिख रहा है आपको, ह्यूज एंड शेड दिख रहे हैं,
वही पेंटेड से रिलेटेड और कुछ तो है नहीं. सो हेंस ह्यूज और शेड्स यू कैन राइट. ठीक है, ह्यूज लिख दो, ह्यूज एंड शेड. सो ह्यूज एंड शेड्स पेंटिंग से इंटीग्रल है. नेक्स्ट, select the correct option to complete the sentence. Travelers advocating the experience economy seek a holiday package with. उनको कैसी हॉलीडे पैकेज चाहिए रहती है? अब देखो, ऑप्शंस पढ़ोगे से गेट दैट एक्सपेंसिव होटल में कौन रहना चाहेगा, ऑप्शन ए तो गया. प्लेसेस एंड सिटी जहाँ पे वो स्पेंड मनी कर सकते हैं वो भी नहीं. क्या बचा मतलब जिसमें बजट में जैसा उन्होंने प्लान किया वैसा हो, एक होलसम एक्सपीरियंस. सो यस, बी इज द राइट आंसर. Okay, up next, select the chart that appropriately represents the trend of foreign tourist travels in the Northeast from 11 to 14. 2011 से 14 तक का कौन सा ऑप्शन सही रहा होगा? 2011 से 14 लुको देखते हैं हम लोग इधर, और पैराग्राफ 2 में होगा. हाँ, 2011 टू 14 पूछा, राइट. 14 में इतना था, देन 11, 2011 में बड़ा है, करेक्ट. इट इज ग्रोथ हुई है, ग्रोथ हुई है. सो ऑब्वियसली सेकंड विल बी द राइट आंसर. ग्रोथ हुई है, राइट. इट्स इंक्रीज्ड. सो हेंस दैट विल बी. मैथ्स का क्वेश्चन नहीं तो यू गाइस विल थिंक दैट अरे मैथ्स आ गया इंग्लिश में. नो, जस्ट अ नॉर्मल क्वेश्चन. Fill in the blank. Study of tourist travel statistics in Northeast from 2005 to 14 showed dash results. कैसे रिजल्ट्स दिखे उनके टूरिस्ट में? एनकरेजिंग रिजल्ट्स, क्योंकि इतने रिजल्ट जब बड़े हैं, करेक्ट, रिजल्ट जो है बड़े ही है, घटे तो नहीं है, बड़े हैं. सो पीपल एंकरेज होते हैं उधर विजिट करने के लिए. ओके, substitute the word witnessed with one word similar in meaning in the following sentence from paragraph 2. Foreign tourist arrivals in Northeast witnessed a growth of. Witnessed. Witness का हम और क्या लिख सकते हैं? बहुत सारे words like observed, recorded, displayed, showed, right? You can write recorded also. ठीक है, अब recorded लिख दो, displayed लिख दो, observed लिख दो, सारे करेक्ट होंगे. ओके, नेक्स्ट, लिस्ट एनी टू एग्जांपल ऑफ टूरिस्ट फैसिलिटीज. टूरिस्ट फैसिलिटीज कैसे रिलेटेड होगी? आई विल शो यू द आंसर, डोंट वरी. नेक्स्ट वन, लिस्ट वन रीजन व्हाई द रिसर्चर्स रेकमेंड दैट द फॉर्मुलेशन ऑफ टूरिज्म स्ट्रेटजी इज शुड बी सस्टेनेबल. आई विल शो यू हाउ. लुक ओवर हियर. अकोमोडेशंस जैसे क्या फैसिलिटीज होनी? फर्स्ट, अकोमोडेशन, होटल्स, हॉस्टल, कैंप्स होने ताकि पीपल आसानी से रह सके. रिक्रिएशन के लिए पार्क्स, गार्डन, म्यूजियम, शॉपिंग एरिया होने ताकि वो जाके थोड़ा एक्सप्लोर कर सके. एसेंशियल्स जो नीड है लाइक ईटिंग आउटलेट्स, टॉयलेट्स, वाटर पॉइंट्स, कायोस्क फॉर मैक्स, करेंसी एक्सचेंज अगर इंटरनेशनल हो रहा है तो, राइट. और ट्रैवल गाइड्स होने चाहिए. अब सस्टेनेबिलिटी क्यों चाहिए हमको? ताकि एक सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट्स लोकल कम्युनिटी के लिए क्रिएट हो और नेगेटिव इम्पैक्ट जो डेस्टिनेशन से होते हैं उसको कम किया जाए. ओके, नाउ लुक ओवर हियर. 10th क्वेश्चन देखते हैं. सिलेक्ट द ऑप्शन दैट टाइटल्स पैराग्राफ 1 to 3 अप्रोप्रिएटली. ठीक है, विद रेफरेंस टू द टाइटल. देखो क्या दिखा रहे हैं हमको वो. पहले में तो हमको दिखा रहे कि क्या हो रहा है एक्चुअली, क्या है एक्चुअली इंडिया, नॉट इंडिया, नॉर्थ ईस्ट में क्यों जाते हैं. सेकंड में हमको दिखा रहे हैं कितना इंक्रीज हुआ है, करेक्ट. और फिर लास्ट में हमको दिखा रहे हैं कि क्या करना चाहिए हमको. सो व्हाट विल बी द राइट आंसर? फर्स्ट में हमको बता रहे हैं ना कि ये होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कि क्या चेंजेस है वो सब. सो वी कैन से विंड्स ऑफ चेंज. नेक्स्ट, डेटा बता रहे हैं, सो नंबर्स डू नॉट लाई. और थर्ड, एक्शन करना पड़ रहा है, कुछ हमको सस्टेनेबिलिटी चाहिए. सो हेंस बी इज योर राइट आंसर. ओके, ये भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, बट इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही है, वो सस्टेनेबिलिटी के बारे में एक्शन लेना चाह रहे हैं. सो हेंस बी इज द आंसर. ओके, अब हम चलते हैं हमारे ग्रामर सेक्शन पे. सेक्शन बी ग्रामर है, चलो उसको देखते हैं. फिल इन द ब्लैंक. The climate control comment by an activist dash on social media yesterday. Blow up, blew up is blown, will be blown. Climate control comment by an activist blew up on the social media. है ना, टेंस को हमको चेंज करना है, ब्लू लिख देंगे पास्ट पार्टिसिपल में, करेक्ट. नेक्स्ट वन, कंप्लीट द सेंटेंस बाय रिपोर्टिंग इट. रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट करना है. डू यू फील डाउन फ्रॉम टाइम टू टाइम मिस्टर गोपालन?
पेशेंट, यस आई डू नॉट स्टे इन अ गुड मूड, ठीक है। सो कैसे हम लिखेंगे, डॉक्टर while trying to figure out his patient's ailment asked about his well-being, to which the patient affirmed, क्या होने वाला है, आई डू नॉट स्टे इन गुड मूड, वो लिख सकते हैं नहीं, what will be right, he affirmed that he does not stay किस में, in a good mood, in a good mood. So that is the correct reported speech. Next one. The advertisement read, if you smoke, statistically, your story dash end 15% before it should. Your story will end. ठीक है, your story will end आएगा ना, क्योंकि if you smoke, अगर हम करते हैं तो future की बात करें, so hence will be the answer. Next one. Select the option that indicates the error and supplies the correction. Last week, a child was not allowed to board the plane at Ranchi airport. लास्ट वीक अ चाइल्ड है, सो चिल्ड्रन थोड़ी ना, तो फर्स्ट गया। सेकंड वाला क्या है, लास्ट एंड प्रीवियस, प्रीवियस वीक का चाइल्ड नहीं, हम रिपोर्ट नहीं करे किसी को भी, करेक्ट, न्यूज रिपोर्ट है, उन जगह वो लास्ट को प्रीवियस नहीं बनाएंगे हम। नेक्स्ट क्या है, द एंड द से ए बन जाएगा, द लास्ट वीक का चाइल्ड वाज नॉट अलाउड टू बोर्ड अ प्लेन एट रांची एयरपोर्ट, ठीक है, वो दिया, सो वो सही होगा, क्योंकि प्लेन थोड़ी एक ही थोड़ी ना प्लेन होगा, प्लेन तो बहुत सारे हो सकते हैं, तो अ प्लेन को बोर्ड नहीं किया गया, तो सी इज द राइट आंसर। Next one, complete the given narrative. As I was standing on the dock looking out at the lake for the last time, a feeling of emptiness dashed over me. Will wash, had washed, will have washed, and washed. क्या होगा? Will तो आने का ऑप्शन ही नहीं है, फ्यूचर नहीं, अब a feeling of emptiness washed over me. वो पास आउट हो गए ऊपर से like a darkness, ठीक है। Fill in the blank with the correct form of word. Subject, रिक्वेस्ट फॉर अप्रूवल एक पोर्शन है, लेटर का एक पार्ट लिया गया है, तो हमको बताना है कि सीख के लिए क्या लिखेंगे, दिस इज टू रिस्पेक्टफुली सबमिट दैट आई सीक अप्रूवल, करेक्ट, सीख के लिए हम क्या लिख सकते हैं, क्या होगा हमारा करेक्ट वर्ड, वह करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड, सीख का क्या होगा, सीख ही रहेगा, क्योंकि सीकन या उसका कोई फॉर्म नहीं होता, सो सीख विल बी द आंसर, ठीक है। Up next, report the dialogue between grandson and grandfather. Grandpa, who are your superheroes? Anyone who shows kindness and compassion to others. So, in response to the question about his superheroes, grandfather says that kya, it is anyone who knows to show kindness and compassion to others. ठीक है? So, the grandfather says that it is anyone who shows kindness, who shows kindness and compassion to others, वो आप लिख देना, ठीक है, to others, that is the reported speech. Identify the error and correction. In order to balancing the sentiments of the Eagles and the Hawks, student council suggested a rematch between the teams. क्या होगा इसमें, ध्यान से पढ़ो, इन ऑर्डर टू बैलेंसिंग द सेंटिमेंट्स, बैलेंसिंग क्या होता है, देयर इज नो वर्ड लाइक बैलेंसिंग, मतलब वर्ड है पर यू कैन नॉट राइट इट हियर, बैलेंसिंग नहीं, इन ऑर्डर टू बैलेंस, करेक्ट, इन ऑर्डर टू बैलेंस द सेंटिमेंट्स, सो बैलेंस इज द करेक्ट statement. Next one, Sunil shared some information with Tariq about holiday at sea. Reported. Did you enjoy traveling by the sea? So how will we ask? Tariq ने पूछा, right? So Tariq asked. We will write that Tariq asked if, asked Sunil. You can write Sunil asked if he had enjoyed. Enjoy है ना, तो past में आ जाएगा. Enjoyed traveling by the sea. Correct? Traveling by sea. Okay. Next one. Fill in the blank again to complete the slogan. Dash we afford to neglect children? Think twice. So, will we afford? May we afford? Need we afford? Need तो पहले सुनने में अच्छा नहीं है. Can we afford? अब देखो, will we afford नहीं होता, हम क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, तो होगा क्या, can. Can we afford to neglect our children?
थिंक ट्वाइस, सो कैन करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट वन। ओके, नेक्स्ट नहीं, नेक्स्ट इज क्रिएटिव राइटिंग। ओके, अब क्रिएटिव राइटिंग में जाते हैं। क्रिएटिव राइटिंग में आई एम नॉट गोइंग टू रीड एवरीथिंग, अभी आपको पता ही क्या है, सो लुक ओवर हियर। यू आर सुनिधि प्रकाश, आप सुनिधि प्रकाश हो, ब्रिलियंट विद्यालय के वाइस कैप्टन, बर्रा कानपुर। ओके, you have recently noticed several posters around you promising conveying a hazardous message. Lose weight in just a month. A wonder diet comes to your rescue. A privilege available for only a few. ठीक है, ऐसा सा दिखा है उन्होंने। आपको क्या करना है, आपको एक लेटर लिखना है टू द एडिटर ऑफ DWA इन नॉट मोर देन 120 वर्ड्स, अटेंशन लेके आके कि हार्म्स कॉज्ड बाय सच एडवर्टाइजमेंट, फेक एडवर्टाइजमेंट, और आपको इम्प्लीमेंटेशन बताने हैं होलसम लंच मंथ के जो स्कूल्स में है, ताकि उनका बॉडी इमेज और एवरीथिंग अच्छा रहे। ठीक है, सो आप कैसे लिखोगे, आई एम नॉट गोइंग टू रीड द थिंग, यू कैन रीड इट ऑन योर ओन, आप वीडियो को पॉज कर टेल यू हाउ यू हैव टू डू, वो इंपॉर्टेंट है, फॉर्मेट इंपॉर्टेंट है। देखो, फर्स्ट आपको किसके लिए मार्क्स देंगे वो लोग, फर्स्ट आपको मार्क्स मिलेंगे आपके कंटेंट के लिए, कि सारे पॉइंट्स लिखे हैं कि नहीं, आपने क्लियरली मेंशन किया है कि नहीं, 2 मार्क्स 3 मार्क्स उसमें मिल जाएंगे। देन फॉर दी फॉर्मेट ऑल्सो, ठीक है, जैसे एड्रेस, डेट, फिर रिसीवर का एड्रेस, सब्जेक्ट और सैल्यूटेशन, इसके भी आपको मार्क्स मिलेंगे। और फिर एंडिंग आप कैसे कर रहे हो, इसकी जो एंडिंग हुई है विद योर क्लोजिंग कंक्लूजन साइन, आपका नाम एंड द डेजिग्नेशन, उससे आपको फुल कितने मार्क्स का होता है, इट इज फॉर 5 मार्क्स, राइट, यस, सो विद दिस यू विल गेट फुल 5 मार्क्स ऑफ योर्स। ठीक है, 5 या 6 मार्क्स, हाउ एवर इट इज। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या है, रीडिंग द फॉलोइंग एक्सर्प्ट, kids who appreciate how much effort, time and care goes into growing food will understand how important farmers are and why it's important to take care of our earth. In the world of today, gardening needs to be given more importance than sports, music and dance in all schools, because it's create environmental stewards and outdoor learning laboratories that will help the child and community for years to come. हमको इसके ऊपर एक पैराग्राफ लिखना है। ठीक है, हाउ कैसे लिखोगे आप, पहले आप लिखना आर्ग्यूमेंट फॉर द सब्जेक्ट ऑफ स्टेटमेंट, आर्ग्यूमेंट फॉर, ये हम उनके साथ में, तो इनमें से आप कोई भी एक लिख सकते हो। कैसे, अब अगर उसके साथ हो, किसके साथ हो, ये एक पैराग्राफ के साथ में हो, डिसीजन के साथ में हो आप, तो आप ये वाला लिखोगे। ठीक है, यू विल राइट दिस। और अगर आप आर्ग्यूमेंट के अगेंस्ट हो, तो आप ये लिखोगे। सो आइए, आपको दोनों लिखने की जरूरत नहीं, यू विल राइट कि आप क्या कर रहे हो, आपको अगेंस्ट जाना अगेंस्ट लिखो, उसके लिए सपोर्ट में लिखना है तो सपोर्ट में लिख दो। ओके, अब हम चलते हैं हमारे लिटरेचर सेक्शन पर। ओके, आपकी बुक्स फर्स्ट फ्लाइट, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में से क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन, reference to context. Hey, a garden, tea garden, Rajveer cried excitedly. Pranjal, who had been born and brought up on a plantation, didn't share Rajveer's excitement. Oh, this is a tea country now, he said. Assam has the largest concentration of plants. You will see enough gardens to last you lifetime. ठीक है, तो ये किधर से है हमारा ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। ठीक है, टी फ्रॉम आसाम, राइट, उसमें से दिया गया है। अब हमारे पास कुछ एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज मतलब शॉर्ट आंसर्स है। Why was Pranjal not as excited as Rajveer? राजवीर इतना एक्साइटेड क्यों था, क्योंकि उसने ऑलरेडी गार्डन्स देखे थे, उधर ही बॉर्न एंड बॉटअप था। सो यस, ही हैड ग्रोन इन एंड अराउंड टी गार्डन, सो वो इतना एक्साइटेड नहीं हुआ। What does Pranjal mean by saying that Assam has largest concentration? Largest concentration मतलब एक हाईएस्ट, एक प्लेस है जहाँ पे सबसे ज्यादा हार्वेस्ट होता है, करेक्ट, हाईएस्ट हार्वेस्टिंग ऑफ टी प्लांट्स आसाम में, तो इसलिए उसको लार्जेस्ट कंसंट्रेशन बोला है। Fill in the blank with one word. Pranjal's dash comes through clearly when he explains. You will see enough gardens. Pranjal का क्या आता है, यू कैन सी कि वो लिटिल बिट, थोड़ा सा यू कैन से वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, करेक्ट, यू कैन से दैट वो एक फ्रस्ट्रेशन दिखा रहा है, क्योंकि इट इज एंडेड बाय एक्सक्लामेटरी मार्क। सो क्या दिख रहा है कि कम्स थ्रू क्लियरली व्हेन ही एक्सप्लेन, उसने बोला ना कि एक्साइटेड, ओ माय गॉड इतना सा, तो इरिटेट होके बोलता है कि हाँ यू कैन सी दिस फॉर अ लाइफ टाइम, तो लिटिल बिट फ्रस्ट्रेशन दिखता है। ओके, नेक्स्ट वन,
How according to Rajvi does the world know about the discovery of tea? टी की डिस्कवरी का हिस्टोरिकल प्लेसेस, ट्रेडिशनल टेल्स, ऑथेंटिक एनेक्डोट्स या पॉपुलर पब्लिकेशन, कहाँ से उनको पता चलेगा? ऑब्वियसली वो लोग हिस्टोरिकल प्लेस म्यूजियम में जाके चाय के बारे में तो नहीं बोलेंगे। सो आंसर क्या होगा? ऑब्वियसली ट्रेडिशनल टेल्स, जो पुरानी कथा है, स्टोरीज है, एनेक्डोट्स होता है पर्सनल शॉर्ट स्टोरीज, उसमें नहीं होगा। करेक्ट। नेक्स्ट वन, select the option that correctly captures the application of the word cried as used in line 1। देखो, हे अ टी गार्डन राजवीर क्राइड है, अब वो सच्ची में रोने थोड़े, क्राइड मतलब एकदम चिल्ला के। सो हाउ कैन वी से जसप्रीत क्राइड अ लॉट इन स्पाइट ऑफ विनिंग, वो सच्ची का रोना वाला क्राई हो गया। जसप्रीत क्राइड आउट लाउड व्हेन शी सॉ, नहीं वो चिल्ला, वो नो कि नो, नहीं वो चिल्लाना होगा। करेक्ट, सो बी विल बी द राइट आंसर। क्राइड फॉर आवर्स व्हेन द पुलिस वर अनेबल, हाँ वो भी रोना हुआ। और शी बैडली क्राइड व्हेन शी वाज 3 years। सो कब से हमको इधर रोने वाला क्राई नहीं चाहिए, चिल्लाने वाला क्राई चाहिए। ओके, सो बी। अब चलते हैं नेक्स्ट वाला, द ट्रीज में से। The trees inside are moving out into the forest. The forest that was empty all these days, where no bird could sit, no insect hide, no sun buried its feet in shadow. The forest that was empty all this night will be full by the morning. अब question is, it is clear that personification is the poetic device for no sun buried its feet, because देखो, इन शॉर्ट ये जो पूरा पोयम है ना, दैट इज इटसेल्फ पर्सन, पेड़ विंडोज तोड़ के जा रहे हैं, चल चल के जा रहे हैं, सो ऑल दिस इज पर्सोनिफिकेशन। नो सन बरी इट्स फीट क्यों है? बिकॉज सन इज नॉट अ लिविंग थिंग। करेक्ट, सन इज लिविंग? नो, सन इज नॉट अ लिविंग थिंग। सन इज व्हाट? इट्स नॉन लिविंग। नॉन लिविंग थिंग्स कैसे अपना फीट, उसके पास फीट कहाँ से आ गई? करेक्ट, सो हेंस इट इज नॉन ह्यूमन एंड हेंस इट इज personification. Next one, poet has used a poetic device. Which is it? No bird could sit, no insect hide, no sun। करेक्ट, इसमें क्या दिख रहा है आपको? एम्फेसिस दिख रहा है। वाई? क्योंकि इसमें कोई बर्ड नहीं, कोई इंसेक्ट नहीं, नो 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 ऐसा दिखा रहा है, सो एम्फेसिस दिखा रहा है। अभी ट्रू है फॉल्स? द एक्सट्रैक्ट यूजेस ट्रीज एज अ सिंबल फॉर कंजर्वेटिव पीपल। इज इट ट्रू और फॉल्स? ऑब्वियसली फॉल्स है। इसमें आपको कहाँ से लोग कहाँ से आ गए? तो पूरा ट्रीज के ऊपर बेस्ड है कि ट्रीज रो रहे हैं, वो इधर उधर जा रहे हैं। करेक्ट, सो इट्स फॉर द ट्रीज ओनली। Next one, select the appropriate option to complete according to the extract. The idea of forest that has been empty all these days is what? Empty all these days, वो ऑब्वियसली अननेचुरल है, क्योंकि थोड़ी ना ऐसा कैसे हो गया कि पूरा फॉरेस्ट खाली था इतने दिनों से अचानक से पड़ गए, तो अननेचुरल चीज है। अब हाउ डज द यूज ऑफ एन्जाम्पमेंट इम्पैक्ट? एन्जाम्पमेंट क्या होता है? एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट लेके उसको पोएम जैसा बना दे, क्या बनता है? मोमेंटम बिल्ड होता है। सो सी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। आंसर एनी फोर ऑफ द फॉलोइंग, फोर ऑफ द फॉलोइंग है, इस वजह से वी हैव टेकन द इंपॉर्टेंट फर्स्ट फोर। ओके, एंड देन वी हैव टू check. Okay, so validate the given statement with reference to baby seagull's fear. Fear doesn't exist anywhere else other than one's mind. So ये क्यों बोला जा रहा है हमको? ये बोला जा रहा है for the first flight, ठीक है, from two stories. So baby seagull could not take his first flight because he was scared कि उसके जो wings है उसकी body weight को support नहीं कर पाएंगे। उसने अपने mother, उसने अपने father, अपने सिबलिंग्स, जो उसके सारे मतलब इन शॉर्ट फैमिली थी, उन सबको देखा था उड़ते हुए, बट येट ही हैड द फियर ऑफ फॉलिंग डाउन, सो दैट ओवरपावर्ड, ओके, इट ओवरपावर्ड एनी सेंस ऑफ एश्योरेंस और एग्जाम्पल। सो रिजल्ट क्या था? कि ही वॉज टू स्केर्ड टू इवन ट्राई फ्लाइंग। ओके, नेक्स्ट, explain the poet explain why the poet personally holds conviction that world will primarily end in fire। फायर एंड ऐसे पोइट क्यों इतना फायर को ही सपोर्ट दे रहे? क्यों? बिकॉज पोएट सेज दैट ही इज इन फेवर ऑफ दोज पीपल हु से दिस वर्ल्ड विल एंड इन फायर। ठीक है, हम एग्री कर रहे हैं, हाँ भाई वो तो फायर का सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों? बिकॉज उन्होंने अपने लाइफ में, इन हिज लाइफ ही हैज सीन द इफेक्ट एंड द रिजल्ट, कॉज एंड रिजल्ट of the uncontrolled and unending desires, you know, the greed and desires and greed of the human beings, and he finds that these human evil desires are similar to the fire in the nature। okay, इस वजह से। नेक्स्ट वन,
Wally's unique maiden bus ride experience could be possible because she belonged to a small village. Do you agree? Why or why not? अब देखो, डू यू अग्री, वाई और वाई नॉट? आपको ऑप्शन देके आप अग्री ना भी कर सकते हो, बट मोस्टली एज पर बोर्ड एग्जाम्स क्या होता है कि वो ज्यादा प्रेफर करते हैं इफ यू से अ यस। अगर आपको हाँ एग्री करते हो तो उसको हाँ ही बोला करो मोस्टली, ठीक है, और आपको इजी रहेगा। अगर नहीं भी बोलते तो फिर आपको वो थोड़ा बड़ा चढ़ा के आंसर लिखना पड़ेगा। सो व्हाई डू वी एग्री? बिकॉज शी वॉज फ्रॉम अ स्मॉल विलेज, बिकॉज अ बस राइड सीम लाइक अ fascinating means of recreation and adventure unlike cities and bigger town में बस बस थोड़ी ना इतनी इम्पोर्टेंस की है। she could travel all alone but safely, unfortunately not in recommended in larger town। larger आपने देखा है कभी स्मॉल 8 9 साल की लड़की अकेले बस में घूम रही है? नो, राइट? so there was only one bus that Wally observed several times। cities have varied means for transport and might seem more adventurous। सो दैट इज वाई कि एक्सपीरियंस वो कर पाए क्योंकि एक स्मॉल विलेज में रहती थी। सो यू अग्री विद दिस। अब नेक्स्ट वन, give one reason why the tale of Custard the Dragon is more a fable than a ballad। Fable क्या होता है? पहले आप बताओ fable होता तो क्या है वो तो बताओ। Fable is a fictitious and narrative with animals, birds, etc. and characters share a strong message, whereas a ballad is a narrative words that can be silly or heroic। अब कंफ्यूज क्या करेंगे हम? फिक्श फैबल भी है, बल्लाड भी है, क्योंकि हीरोइक नेचर दिखा रहे ड्रैगन का, फैबल में वो एनिमल क्या बता रहे हैं। सो बेसिकली कस्टर्ड ड्रैगन में क्या आ रहा है? मोजरली एनिमल्स है, क्या थे वो? इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड, कस्टर्ड सब थे, राइट? सो क्यों एक फिक्शियस और मीनिंगफुल मैसेज दे रहा है वो कि हमको स्ट्रांग रहना चाहिए। सो दैट इज वाई ज्यादा हम इसको बोल सकते हैं कि एक फैबल है ये। ओके, नेक्स्ट वन, Dr. Harriet knew his patients as well as the owners। How? आपको बताना ट्रैम्प ऑफ सर्जरी में से पेशेंट्स और ओनर दोनों को इतने अच्छे से कैसे पहचानते थे वो? पेशेंट्स की बात करें तो डॉक्टर हैरियट कुड अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स ऑफ द पेशेंट, जैसे जब डॉग्स थे, जस्ट बाय ऑब्जर्विंग देम, राइट? दैट्स अ ट्रिकी। he saw him in the market and understood कि वो डॉग को हेल्प की, असिस्टेंस की जरूरत है। Next, about the owners. He understood that the owner, that was Mrs. Pumphrey in the story, well, and never spoke any harsh or advising words on seriously obese dog, knowing fully well that she was responsible for this. Although उनको पता था कि मेरे बोलने से मानने वाली नहीं है, और इनको खुद को भी पता है कि वो responsible है। So वो patients और owners दोनों को बहुत अच्छे से जानते थे। Next one. State one likely reason the writer of The Midnight Visitor chose the character as Ozable as short and fat। Ozable का मेन चीज क्या था? उसका presence of mind, correct? His presence of mind was the main thing उनको जो दिखाना था। अगर कोई fit and fine आदमी होता, so he can anyways with his power muscle also he could defeat the visitor, correct? Max था, right? हाँ, but if he, why did he show like this? Because he was characterized as short and fat as the writer. She wanted to give attention and emphasis to his wits and mental ability to handle any grave situation. Writer perhaps wanted to give a strong message that the brain is what counts more than muscle power, or brain power is more potent or effective than any other type of power muscle। सो वो मेन बताना चाह रहे हैं कि स्मार्टनेस, प्रेजेंस ऑफ माइंड इंपॉर्टेंट है मोर देन स्ट्रेंथ। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम हमारे दो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, एनी वन करने पर हम दोनों करने वाले हैं। ओके, अब देखो, मिचबिल एंड द टाइगर, टाइगर एंड द जू, मिचबिल द ऑटर, उन दोनों में से आपको क्या करना है? दोनों ह्यूमंस देखते थे उनको, करेक्ट? बोथ मेट ईच अदर इन द जू। अब उसका कन्वर्सेशन के बारे में आपको बताने कि वो लोग क्या बात कर रहे हैं, ठीक है? अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आप लिख सकते हो, ठीक है? अब देखिए, इंटरेस्टिंग है, इसमें कुछ दिमाग लगाना, अपने 6 मार्क्स यू कैन गेट इजीली, इसमें कुछ सही गलत जैसा आंसर नहीं है, करेक्ट? सो 6 मार्क को सीधा सीधे मिल जाएंगे। सी हाउ वी कैन राइट अ सैम्पल कॉन्वर्जेशन। Tiger, thanks for visiting me, though I don't usually like visitors। Mitchell, oh, I would love visitors, I think। Tiger,
Why do you think that is? How on earth can you appreciate these obnoxious people who put me in this cage? Mijbil, this is how I feel comfortable. That is why I don't despise them and believe that I'm safe in this way. Tiger, how can you feel safe when you're not in your natural habitat, the jungles? Mijbil, I don't think I had be able to survive in the wild because I'm not as big and scary as you. In the wild, any predator can harm me easily. Tiger, I see, but they can learn to coexist. It is their nonsensical activities such as hitting us with stones, etc., that make us attack them. If they learn how to behave, then we will stay out of the way. Mitchell, I understand your reasoning and I'm sorry for your predicament. I hope they can learn the coexist one day, but I also want you to be pleased about your circumstance. Tiger, it is easier said than done, but I shall give it my बेस्ट सो देखो इतने से बस आपको इसमें अपने इमेजिनेशन यूज करना है क्रिएटिविटी यूज करना है और आपको 6 मार्क्स मिल जाएंगे इसमें दिस इज नॉट द आंसर आप अपना आंसर भी बना सकते हो यू विल नॉट गेट यू कैन नॉट गेट दिस रॉन्ग आपको एक गलत तो मिल ही नहीं सकता क्योंकि आपको कॉन्वर्जेशन लिखनी है तो आप किस तरीके भी कॉन्वर्जेशन लिख दो ओके अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन के ऊपर not from not from weeping nor from grieving will anyone obtain peace of mind if you had to use the message given by given quote from the Buddha sermon the sermon at Banaras उस chapter में से to help a boy cope up with the loss of his ball द बॉल पोयम में से सो व्हाट वुड यू इंक्लूड तो आपको क्या करना है आपको बताना है जो कोट दिया ना गौतम बुद्धा जी ने कि नॉट फ्रॉम वीपिंग नॉट फ्रॉम ग्रीविंग विल एनीवन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड आपको वो बॉय को बताना ही है फर्स्ट वन हम ये जो बुद्धा जी का कोट है उनसे क्या रेफर कर रही है क्या लर्निंग मिल रही है कि जो लॉस है वो इरिप्लेसेबल है ठीक है थिंग्स हमारे जीवन में वी गेट ग्रीफ एंड सोरोज वी बिकम सैड बट वी हैव टू लर्न टू स्टे काम एंड अंडरस्टैंड द पेरिशेबल मॉर्टल नेचर ऑफ थिंग्स एंड हेल्प्स इन लिविंग लाइफ नॉर्मली अब टू हेल्प द बॉय अब जो उसकी बॉल खो गई तो क्या करेगा वो दैट लॉस इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ वाई बिकॉज इम्पॉर्टेंट क्योंकि वो एक्सपीरियंस से सीखेगा कि हमको अडेप्ट होना चाहिए और आगे बढ़ते रहना है it is difficult for the boy to understand the notation why because the boy is too young ठीक है इतना ग्रोन अप नहीं है इतने डेप्थ वो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए वो टू यंग है वो अलोन है उसके ये लॉस में एंड ही हैज नो वन टू एक्सप्लेन एंड मस्ट लर्न फ्रॉम हिज ओन एक्सपीरियंस painstakingly requires time to cope up and easy to feel disheartened at that age so नेक्स्ट वन है नेक्स्ट वन क्या है फिक्शन राइटर्स प्रेफर क्रिएटिंग ग्रे कैरेक्टर रादर देन ब्लैक एंड व्हाइट एनालाइज दिस इन डिटेल विद रेफर टू द थीफ स्टोरी सो इंट्रोडक्टरी में क्या हुआ दोनों कैरेक्टर्स ना तो ब्लैक थे ना तो व्हाइट ब्लैक और व्हाइट का मतलब क्या है नेगेटिव और आइडियल का ओके और दोनों की स्टोरी मिडल में थी ग्रे अब हरी सिंह ही वो आर्टफुल था बहुत स्मार्ट था उसकी यंग एज में भी और उसने विक्टिम्स और पुलिस को बहुत ही फूल किया था ही यूज्ड टू स्टील द नोट्स एंड एक्सेट्रा बट ही फ्रॉम ब्लैक ही बिकेम टू वाइट बाय द अफेक्शन एंड अनिल्स ट्रस्ट ठीक है सो इट इज नॉट अ फ्लैट कैरेक्टर इज आइदर ब्लैक और व्हाइट अब अनिल क्या था वाइल वी कैन एडमायर अनिल फॉर हिज क्वालिटी जैसे हेल्पफुल था सिंपल ट्रस्टिंग था फॉरगिव किया बट एनीवेज वो एक थीफ था he was not perfect about money ignored हरी सिंह pilfering मतलब उसने जो चोरी की थी उसका एंड कैरेक्टर ऑफ हरी सिंह वो भी इधर ब्लैक एंड व्हाइट है ठीक है सो कंक्लूजन इज ग्रे कैरेक्टर जो मिडल में आते थे प्रेजेंट अ चैलेंज टू द रीडर्स कि वो खुद अनप्रिडिक्टेबिलिटी और मॉरल चैलेंज को डिस्प्ले करे Next one. Honor among thieves is considered a popular code. Examine a question of trust as a story. Honor among thieves. It is believed that thieves never double cross each other. मतलब जो चोर चोर होते हैं चोर चोर they never doubt each other. ठीक है and commit crimes against each other and they would be inclined to help each other rather than betray. वो एक दूसरे को help करने के लिए एकदम आगे रहेंगे अब जो प्रोटैगनिस्ट है हॉरस डैनबी ही वाज केयरफुल मेटिकुलस इन हिज थेफ्ट व्हिच ही कंडक्टेड वंस अ ईयर एंड डिडंट पार्टिसिपेट इन द रोल ऑफ द लेडी इन द रेड जो रेड में उसको लेडी थी उसने उसको फूल बना दिया
ठीक है, उसको बिट्रे कर दिया। इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ थीफ शी डिड नॉट फॉलो द कोड ऑफ ऑनर। क्यों? क्योंकि क्यों नहीं किया? क्योंकि वो भी थीफ थी, अभी थीफ थे, दोनों बचा सकते थे एक दूसरे को। बट उसने, वो लेडी ने बिट्रे करके हॉरेस डैनबी को जेल में भेज दिया। ओके और इस तरीके से हमने आज का सेशन कंप्लीट कर दिया। स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। हमने इंग्लिश का सैम्पल पेपर पूरा कंप्लीट कर दिया। इफ यू वांट मोर रिवीजन वीडियोस और मोर सैम्पल पेपर्स, मेक श्योर यू कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन कि आपको और क्या चाहिए फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, शेयर टू योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करो चैनल को। आई विल सी यू सून, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।